Good morning, dear students. I am going to take your organic chemistry. In that, I am going to take unit 2, and in that, we are going to see about the A part, that is organometallic compounds. Under that, we are going to see synthesis, structure, and chemical reaction of organo metals like magnesium, zinc, and lithium compounds, and the method of preparation and chemical reaction of 1,3-diethane and iron, and that is called as Uplang reaction, sulfur ylides, lithium diisopropyl amide, and Woodward-Prevost hydroxylation. These all the method of preparations are very important. And in B part, we are going to see about the heterocyclic compounds, under which we are going to study the molecular orbital picture of and the aromaticity of furan, thiophene, pyrrole, pyridine, method of synthesis of pyridine, mechanism of electrophilic and nucleophilic substitution reaction of pyridine, chemical reactions of pyridine structures, and the difference comparison between pyrrole and pyrimidine, basicity of the pyrrole and pyridine, and lastly preparations and reactions of quinoline and structures of ferrocene. So this much is included in your unit 2, and I am extremely sorry that I am delaying for this online lecture. Actually, I was also a corona sufferer, and my family too got infected, and that's why whole thing got delayed. I'm really extremely sorry for the inconvenience caused. You haven't got the material. I will, along with this online lectures, I will provide you the PDF, that is notes. Let us start with the first of all we see the B part, that is heterocyclic compounds. So if you see the name heterocyclic compounds, heterocyclic means homo and hetero. Hetero means something, one thing is different, and homo means that is two similar things. Okay, so heterocyclic. Now heterocyclic compounds means which are having the name only itself understand, or it gives you an understanding that it is having a ring. Okay, so which is having a cyclic structures, and the non-carbon atoms in such rings are known as heteroatoms. यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे कंपाउंड जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है और उसमें एटम जो कि डिफरेंट है, हेट्रो है, ओके, डिफरेंट है. सपोज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है. दिस टाइप ऑफ आर दी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, उसको साइक्लिक चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे इथिलीन ऑक्साइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, लैक्टॉन्स, थैलेमाइड, ये सब ओपन चेन compounds. So these are acyclic compounds. They are not formed cyclic. So heterocyclic means a cyclic structure, a ring structure, and उसमें heteroatoms like nitrogen है, sulfur है, then oxygen है, okay, chlorine है. This type of ये जो बोलेंगे उसको heterocyclic compounds बोलेंगे. Now let us see the heterocyclic compounds कैसे कैसे हैं. First of all, we will see the heterocyclic compounds which are 5-membered rings. Okay, so these are the listed 5-membered heterocyclic rings. That is, this is the furan, this one is furan, this is thiophene. furan यानी जहाँ पे ऑक्सीजन है और 5 मेंबर्ड है. जहाँ पे सल्फर है उसका नाम है थायोफीन. जहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो पायरॉल है, ठीक है. जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 5 मेंबर्ड के साथ नाइट्रोजन है उसको ऑक्साजोल बुलाएंगे. और जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है ऑक्सीजन, फर्स्ट पोजीशन सेकंड नाइट्रोजन है तो उसको आइसोऑक्साजोल बोलेंगे. सी द सिचुएशन दैट एज सून एज द पोजीशन इज चेंजिंग, द नेम आल्सो इज गेटिंग चेंज्ड. ओके, जैसे यहाँ पे भी थायोजोल है, फिर आइसोथायोजोल, यहाँ पे पायराजोल है, तो यहाँ इमेडाजोल. सो दीज आर दी 5-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स. इसमें से हम लोगों को एरोमेटिसिटी देखनी है फ्यूरॉन, थायोफीन, पायरॉल की,
ठीक है. So these are the examples of 5-membered heterocycles. These are called as heterocycles. Okay. यानी cyclic structures भी है, एक hetero है, दो किसी किसी में एक hetero atoms पाया जा रहा है, किसी किसी में more than one hetero atom पाए जा रहे हैं, उसके नाम भी अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं. Now we will see about the 6-membered heterocyclic compounds, that is pyridine, pyrimidine, that is pyridazine, pyrazine, जो कि हम लोग अगर देखेंगे नाइट्रोजन पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन का फर्स्ट है उसका नाम पिरिडिन है. अगर हम 1-3 पोजीशन पे देखेंगे तो पिरिमिडिन है. अगर 1-2 पोजीशन पे देखेंगे तो डायाजीन है. और अगर वही हम लोग देखेंगे 1-4 पोजीशन पे तो वो है पायराजीन. सो इन दिस वे दिस इज 6-membered हेटेरोसाइक्लिक. कंडेंस्ड भी है यानी फ्यूज्ड, उसके साथ किसी एक साइक्लिक के साथ दूसरा अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर अटैच्ड है 5-membered 6-member के साथ तो उसका नाम है इंडोल, बेंजोफ्यूरॉन, क्विनोलिन, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इट इज ऑल्सो यूज इन ड्रग्स. ठीक है. आइसोक्विनोलिन, दिस इज अ कार्बाजोल. यहाँ तो कार्बाजोल में 2 फ्यूज स्ट्रक्चर्स है, उसके अंदर जो है पायरॉल रिंग फ्यूज्ड है तो उसको कार्बाजोल नाम देंगे. नाउ लेट अस सी द एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरॉन, थायोफिन, पायरॉल एंड पिरिडिन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द एरोमेटिसिटी ऑफ फ्यूरॉन, थायोफिन, पायरॉल. अगर फ्यूरन की बात की गई तो फ्यूरन यानी जो कि ऑक्सीजन जो 5-membered अगर हम लोग बैक अगर करेंगे तो ये है फ्यूरन, ये फ्यूरॉन. थायोफिन बोलने से, थायो बोलने से सल्फर, और पायरॉल बोलने से नाइट्रोजन NH. ठीक है. तो हम लोगों को उसकी एरोमेटिसिटी देखनी है. तो अगर आप लोग देखेंगे इट इज़ अल्सो शो द एरोमेटिसिटी. तो अभी ये एरोमेटिसिटी कैसे शो की गई है. सपोज हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा स्ट्रक्चर्स एंड इफ यू आर ड्रॉ लाइक दिस 5-membered cyclic structure एंड यहाँ पे कोई हेटेरो आइटम लाइक X वी आर पुटिंग हियर X. ठीक है. X को हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं. वी आर डिनोटिंग लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन. ठीक है. तो ये 5-membered रिंग भी एरोमेटिसिटी शो करते हैं एज लाइक दैट ऑफ बेंजीन. उसका कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सल्फर भी है, आप नाइट्रोजन भी है. ठीक है. सो ये सारे जो हेटेरो एटम्स है ये जो है it will provide electrons, electronegativity, unshared electron pairs to this 5-membered ring, and that's why it is also aromaticity. aromaticity के लिए क्या होना चाहिए, that is electrons, it should be cyclic and 6 pi electrons की बहुत ज़रूरत होती है उसकी. ठीक है. so ये भी जो 5-membered ring है ये भी aromaticity दिखाते हैं और उसका कारण मेन जो है वो हेटेरो एटम्स है. वही स्टडी हम लोग कर रहे हैं. दिस फॉर्म्स अ सेक्सटेट ऑफ delocalized electrons as present in benzene, cyclopentadiene anion, cycloheptatryne and cation, that is tropylium. Let us see. Suppose the structure of each heteroatom shown. अब यहाँ पे मैंने जैसे वहाँ पे X लिया था, यहाँ पे भी अब ले सकते हो X, ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो या सल्फर. ठीक है. तो इसमें हर एक जो हेटेरो आइटम है, फॉर एग्जांपल थायोफिन, पायरॉल एंड फ्यूरन, इसमें 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है. नाउ दिस इफ वी डीलोकलाइज्ड एंड इफ वी अंडरगो रेजोनेंस, ओके, देन डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन्स है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स हैं, तो वो डेफिनेटली शिफ्ट होंगे. एंड एज सुन एज इट इज गेटिंग शिफ्टेड द बॉन्ड इज शिफ्टिंग. इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, बॉन्ड शिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड, बॉन्ड. यानी दिस लोन पेयर्स आर द फैक्टर्स वेयर द एनर्जी इज मूविंग, और द मोर द एनर्जी इज मूविंग, more stable is the compound. More stable is the compound. So if we are shifting the electrons right from 1 to 5, we can see that there are 3 to 4 5 structures. Means we can conclude that this 5-membered heterocyclic compounds, maybe furan, maybe thiophene, maybe pyrrole, they are aromatic, they undergo aromaticity, and the reason is that of the unshared pair electron which is present on oxygen, electronegativity, because of the electronegativity, because of thiophene, because of that sulfur, because of nitrogen, and it undergoes more the shifting of electrons. It gives you 4 to 5 structures. So the energy, that is the lone pairs, are moving from one
structure to the, if you see from one structure to that is one structure to fifth structure. Okay, so this shows that this electrons, this compound 5-membered electrons are stable. Okay, now we'll see the stabilization energies of furan, thiophene and pyrrole. If you see, that is 16, 29 and 21. अगर आप देखोगे बच्चों तो 16, 29 और 21 किलो कैलोरी पर मोल इनकी एनर्जीज है रिस्पेक्टिवली। यानी फ्यूरॉन जो है 5 मेंबर के साथ जो ऑक्सीजन है उसकी 16 है, 5 मेंबर के साथ जो SH है ना सल्फर है वो 29 है 29, और पायरॉल जो है NH वो 21 है। ठीक है, so which are less than the stabilization energy of benzene. These heterocyclic compounds different from benzene but it show resonance energy. अभी हम लोगों को देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी कौन ज़्यादा फेवर में है। तो हम लोग देखेंगे जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है। थायोफिन जो है सल्फर इज मोर स्टेबल दैन द पायरॉल जैसे NH एंड फ्यूरन। क्यों बच्चों? फ्यूरन शुड बी द लेस्ट एरोमेटिक ऑफ अमंग 3 हेट्रोसाइक्लिक। द रीजन इज कि ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके बाद नाइट्रोजन है और उसके बाद सल्फर है। तो ये क्या करता है, सल्फर थोड़ा सा हेल्प करता है इन द डीलोकलाइजेशन। अगर हमने सल्फर लिए तो वो एनवायरनमेंट को उतना खींचने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन ऑक्सीजन और हम नाइट्रोजन लेंगे तो दे विल पुल दी इलेक्ट्रॉन्स और जो डीलोकलाइजेशन जो पाए का है वो खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इनकी एनर्जीज अगर आप देखोगे तो 16 और 21 है ना। नाइट्रोजन की तो बेटर है लेकिन 16 की तो कम है, क्योंकि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इतना पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि वो अपने तरफ उस पूरी डीलोकलाइजेशन को खींचने की कोशिश करता है एंड दैट्स व्हाई अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ये रिंग्स में। Therefore, what we see that the thiophene is more favorable, more aromatic, more favorable क्यों? क्योंकि वो हेल्प कर रहा है, वो रिंग के शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प कर रहा है मूविंग यानी फॉर्म करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए हेल्प कर रहा है। बट ऑक्सीजन ऐसे नहीं करता। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की अपनी खुद की आइडेंटिटी है और वो क्या करता है, अड़क के बैठा है और वो खींचने की कोशिश करता है। इसीलिए थायोफीन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा that is more electronegative than the pyrrole and the furan. Let us see the molecular structure. Now physicochemical methods such as X-ray analysis prove that कि कार्बन हाइड्रोजन हेट्रो एटम्स लाइन 1 पे एंड वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन जाता है, कार्बन sp2 एंड उसका जो हाइड्रोजन है वो s ओवरलैप से जाता है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दैट इज sp2 s ओवरलैप टेक्स प्लेस इन दिस 5-membered heterocyclic compounds. Okay, now one electron from each carbon atom and 2 electrons from hetero atom occupy p or overlapping collaterally, stabilizing the delocalization effect and इसीलिए वो aromaticity show करता है. So in this way these are the electrons and these are the sp2 s overlapping which is shown in furan, thiophene and pyrrole, जहाँ पे H यहाँ पे है. So this is the lower way. In this way students, today we have seen, in this ways students we have seen about what are heterocyclic compounds, then what are उसके examples हम लोग ने देखे. ठीक है, फिर हमने 5-membered जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिसिटी शो करते हैं कि नहीं वो देखा, और वो क्यों कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स भी देखा। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू सी अबाउट द pyridine. थैंक यू सो मच।